Hello student, welcome to all my 12th science student. This is my fifth lecture on chapter number 1, that is solid state. In this lecture we discuss mainly on numericals in the chapter number 1, that is solid state. So let's start one by one. Before we start, we remember some formulas. These are useful for the solving of numericals. In this table I will shortly write some formulas. First of all, you have to memorize, always memorize, that is A is equal to A cube, means that is the edge length. Second one, mass is equal to, when you have to mass is calculate, then capital M is equal to small m into n. Then third number, that is rho is equal to mass upon volume. We know that. These are also memorized. Also you have to write down when capital M is calculate, then m into na. Na is the Avogadro's number. इसका जो वैल्यू होता है that is equal to 6.022 into 10 raised to 23. Then one important formula, that is rho is equal to n into m upon a cube into na. Here instead of n sometime you have to take what is the z. Z is equal to z also you have to use. These are the effective atomic number. Just like in SCC, effective atomic number is 1, BCC effective atomic number is 2, and FCC effective atomic number is 4. That's n is equal to you have to use. Then how much number of atom how you have to calculate? Simply SCC 1 upon 8 into 8. ये 8 कॉर्नर पे होता है और 8 into 8 किया तो आपको मिलेगा 1. जैसे दिस 1 plus 1 BCC में एक सेंटर में होता है और 8 कॉर्नर का जो 8 1 अपॉन 8 का 8 इज इक्वल टू 1 होगा. Z इज इक्वल टू 2. FCC का फेस पे 1 हाफ होता है. टोटल 6 फेस पे 1 हाफ करके 3 plus 1 इज इक्वल टू 4 होता है. ठीक है. तो पैकिंग एफिशिएंसी हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो SCC में कितना होता है 52.4%. BCC में 68% और FCC में 74%. एक सिंपल रिलेशन ध्यान में रखना है. ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स होता है, दैट इज ऑक्टाहेड्रल इज इक्वल टू नंबर ऑफ वर्ड्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ, जो सेम होता है दोनों ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स में, नंबर ऑफ एटम्स एंड नंबर ऑफ वर्ड स्पेस सेम होता है. जैसे इज एन इज इक्वल टू एन रहेगा, यहाँ पे टेट्राहेड्रल में वो डबल होता है, दैट इज एन इज इक्वल टू ट्वाइस एन. ठीक है. दिस सम फॉर्मूलास यू हैव टू मेमोराइज. व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन आर? Is r is equal to twice r, or twice r. Suppose you have to calculate r, then a by 2. 4r is equal to root 3a. When you have to calculate r is equal r you have to calculate that root 3 by 4 into a. This 4r is equal to root 2a. When you have to calculate r, then this a upon 2 into root 2. This simple equation you have to memorize. Okay. Next. Now the solid state numericals you have to start. First, in your textbook number 4 number का जो numericals है, that is the density of iridium is 22.4 gram per cm cube. The unit cell of iridium is FCC. Calculate the radius of iridium atom. Molar mass of iridium is equal to 192.2 ग्राम पर मोल. आपको एक्सपेक्टेड आंसर दिया है 136 पिकोमीटर. तो यहाँ पे हम लोग को फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन क्या करना है. द डेंसिटी ऑफ इरिडियम आपको दिया हुआ है, दैट इज 22.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. देन सेकेंड वन दिया है, that is molar mass of iridium also given,
that is 192.2 gram per mole. Also we know that the type of crystal is also given, that is equal to FCC, and we calculate by radius of the iridium, means R is equal to, you have to calculate. First upon we know that in FCC structure there are 8 corners having 8 iridium atoms at 8 corners and 6 iridium atoms at the 6 faces or face center. Means simple, you have to simply calculate by total number of atoms, that is equal to 1 upon 8 into 8 plus 1 half into 6. Simply these 8 get cancelled, here 2 into 6, that is equal to 3. सिंपल आपको मिलेगा 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4, दैट इज n, और इसे z से भी रिप्रेजेंट करते हैं और n से भी रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, नेक्स्ट स्टेप, दैट इज first upon you have to calculate the mass of iridium. This mass of iridium atom is equal to, we know that molar mass upon Na, means molar mass आपको दिया हुआ है, that is 192.2 ग्राम पर मोल्स अपन Na का वैल्यू हम लोग को पता है, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23. अगर इसे लॉग से कैलकुलेट किया तो ये आफ्टर कैलकुलेशन ये 23 ऊपर चला जाएगा, तो आपको माइनस में 10⁻23 हो जाएगा. हम लोग सिंपल लॉग से कैलकुलेट करते हैं, लॉग ऑफ 192.2 माइनस लॉग ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 का आपको लॉग निकलना है. तो इसका लॉग आएगा 192 का लॉग आएगा, मिलेगा आपको 2.2837 माइनस 6.022 का लॉग मिलेगा आपको 0.7797 इंटू 10⁻23. इसका माइनस करके आपको जो वैल्यू मिलेगा दैट इज इक्वल टू दिस 1.504. इसका हम लोग एंटीलॉग देखेंगे, एंटीलॉग देख के आपको जो मिलेगा वैल्यू दैट इज इक्वल टू 31.92 इंटू 10⁻³ एज इट इज. 10⁻³ एज इट इज लिया है हम लोगों ने. देन नेक्स्ट वन, आफ्टर दिस you have to take what is the mass of 4 atom. ये 31.92 1 एटम्स का मिल गया है. तो हम लोग के पास FCC में कितना एटम्स होता है, टोटल 4 एटम्स. 4 से हम लोग सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 31.92 इंटू 10⁻23. जिसका मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग को मिलेगा दैट इज दिस 4. सिंपली फिर से हम लोग लॉग से देखते हैं, 4 प्लस 4 log of 4 plus log of 31.92 इंटू 10⁻23. ठीक है, सिंपल आपको जो लॉग मिलेगा दैट इज 4 का लॉग मिलेगा आपको 0.6021 प्लस 31.92 का लॉग मिलेगा आपको 1.5041. प्लस करने के बाद आपको जो वैल्यू मिलेगा दैट इज इक्वल टू 2.01062. इसका हम लोग सिंपली एंटीलॉग देखेंगे. एंटीलॉग देखने के बाद आपको जो वैल्यू मिलेगा दैट इज इक्वल टू 127.69 इंटू 10⁻23. इसे हम लोग क्या करेंगे, दैट इज कन्वर्ट इंटू 1 पॉइंट. पॉइंट आपको क्या करना है, सिंपली दैट साइड शिफ्ट करना है. अगर पॉइंट दैट साइड शिफ्ट किया है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इज मल्टीप्लाई बाय 10⁻² से. 10⁻² माइनस 10⁻23, 10⁻² माइनस ये बेस सेम है तो 10⁻² और 10⁻23 माइनस हो जाएगा. It gives by 1.2769 into 10⁻21 gram. Okay, then next step, that is now we know that rho is equal to mass of unit cell upon volume of unit cell. मीन्स हम लोग ने सिंपल आपको जो न्यूमेरिकल दिया है इसमें रो का वैल्यू दिया है, आपको डेंसिटी दिया हुआ है, मास हमने कैलकुलेट किया है और वॉल्यूम ऑल्सो आपको गिवन में है. तो सिंपल दिस पुटिंग दिस वैल्यू, रो इज इक्वल टू 22.4 एंड मास इज इक्वल टू 1.2769 इंटू 10⁻21 ओपन ए क्यूब. ओके, ए क्यूब हम लोग को निकलना है. फर्स्ट अपन यू हैव टू कैलकुलेट बाय
ए क्यूब आपको एज लेंथ आपको निकालना है, वो आपको एग्जाम्पल में नहीं दिया है। तो फर्स्ट अपन ए क्यूब का कैलकुलेशन करेंगे। ए क्यूब कैलकुलेशन के लिए ये वैल्यू आपको पुट आपको यह ए क्यूब इधर आ जाएगा, दिस डेंसिटी इधर चला जाएगा। सिंपल हम लोग क्या करेंगे, फिर से दिस मल्टीप्लिकेशन करके आपको डिवाइडेड करके आपको जो वैल्यू मिलेगा दैट इज इक्वल टू 5.700 इंटू 10⁻23। ठीक है, दिस फर्स्ट दिस पॉइंट ऑल्सो शिफ्टिंग हियर फ्रॉम दैट साइड, यहाँ से इसका वैल्यू हो जाएगा 57.00 इंटू 10⁻24 में कन्वर्ट कर लिया है। ओके, 24 में कन्वर्ट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका क्यूब रूट लेंगे, टेकिंग ऑफ क्यूब रूट। क्यूब रूट लेने के बाद हम लोग को मिलेगा 57.00 इंटू 10⁻24 1/3। इसका हम लोग फिर से लॉग लेंगे 1/3 लॉग ऑफ 57.00 इंटू 10⁻8। ये यहाँ पे कट हो गया, ये 24 का क्या हो जाएगा -8 सेम क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, देन दिस 1/3 से आपको मल्टीप्लाई करने के बाद आपको जो वैल्यू मिलेगा दैट इज इक्वल टू 1.7538/3। इसका जो वैल्यू आपको मिलेगा 3 से डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू मिलेगा दैट इज इक्वल टू 0.5853। इसका हम लोग क्या करेंगे, सिंपली एंटीलॉग लेने के बाद आपको जो वैल्यू मिलेगा दैट इज इक्वल टू 3.8485 इंटू 10⁻8 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, नेक्स्ट दैट इज नाउ वी कैलकुलेट आर। हम लोगों ने ए भी कैलकुलेट किया, ए कैलकुलेट हो गया है, तो आपके पास अभी सिंपली लास्ट स्टेप में आपको क्या करना है, आर कैलकुलेट करना है। आर इज इक्वल टू आपको सिंपल रिलेशन क्या दिया हुआ है इस टेबल में, a/2 इंटू √2। तो ए का वैल्यू आपके पास है दैट इज 3.8485 इंटू 10⁻8 ओपन 2 इंटू आर का जो 2 का जो रूट निकालेंगे, रूट का वैल्यू होता है से ऑलवेज रिमेंबर है दैट इज 1.414। 2 का रूट के बाहर आने के बाद आपको वैल्यू क्या मिलता है 1.4.1। इसका सिंपली कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आपको मिलेगा 2.828 एंड ए इज इक्वल टू एज इट इज, ए इज इक्वल टू 3.8485 इंटू 10⁻8। दोनों को डिवाइड करो, फिर से सिंपल लॉग से आपको कैलकुलेशन करना है। दोनों का लॉग देखेंगे हम लोग, इसका लॉग आएगा आपको 3.8485 का लॉग मिलेगा आपको 0.5852 माइनस 2.828 का लॉग मिलेगा आपको 0.4515। ठीक है, दोनों को माइनस करके आपको जो वैल्यू मिलेगा दैट इज इक्वल टू 1.337। इसका एंटीलॉग देखा तो एंटीलॉग देखने के बाद आपको जो वैल्यू मिलेगा दैट इज इक्वल टू 1.36050 इंटू 10⁻8। इसे सिंपली हम लोग को ये पॉइंट इधर शिफ्ट करना है दैट इज इक्वल टू 136.050। आपका जो है आपको जो मिल रहा है सेम क्यूब में मिल रहा है, तो आपको क्या करना है, आपका आंसर किस में कन्वर्ट करने को बोला है, पीएम में। तो पीएम में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, दिस पॉइंट यू हैव टू शिफ्टिंग फ्रॉम दैट साइड। दो 2 डिजिट आपको यहाँ पे शिफ्ट किया तो आपको मिलेगा दैट इज इक्वल टू 10⁻10 इंटू 10⁻10 किया तो आपको मिलेगा दैट इज इक्वल टू 10⁻12 मीटर में कन्वर्ट करने के बाद दिस आपको पता है कि 10⁻12 मीटर इज इक्वल टू 1 पिकोमीटर। ओके, सो सिंपल दिस आंसर इज इक्वल टू 136.050 पिकोमीटर। तो पॉइंट के बाद आपने वैल्यू नहीं भी लिखा था तो भी चलता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वन सेकेंड एग्जांपल देखते हैं, कंटिन्यूस फ्रॉम सीरियली। 4 हो गया, अभी 5 नंबर का है। 5 नंबर का जो वैल्यू होता है दैट इज इक्वल टू अल्यूमिनियम crystallizes in cubic close packed structure with unit cell edge length of 353.6 picometer. What is the radius of aluminum atom, or how many unit cells are there in 1.00 cm cube of aluminum? आपका एक्सपेक्टेड आंसर दिया 125 पिकोमीटर और 2.26 इंटू 10⁻22। ओके, तो आपको सिंपल फर्स्ट अपन गिवन में क्या क्या हो आपको राइट डाउन करना है। गिवन में आपको दिया है व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ
एल्यूमिनियम इज इक्वल टू क्यूबिक क्लोज पैक है। क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर इज इक्वल टू सीसीपी। सीसीपी इज इक्वल टू हम लोग को पता है दैट इज ऑल्सो सेम एज एफसीसी। सेकेंड गिवन दिया है दैट इज एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल। एक का वैल्यू दिया है ए इज इक्वल टू 353.6 पिकोमीटर। देन इसे हम लोग सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लेते हैं दैट इज 353 इंटू 0.6 इंटू 10 इंटू 12 इसका कन्वर्ट करें 10⁻12 में मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। 10⁻12 में कन्वर्ट करने के बाद आपको मिलेगा दैट इज 3.536 इंटू 10⁻8 सेंटीमीटर। ठीक है, इस सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। आपको रेडियस आपको कैलकुलेट करना है। नंबर ऑफ यूनिट सेल्स आपको कैलकुलेट करना है दैट इज इक्वल टू 1.00 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एल्यूमिनियम, ये आपको कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट स्टेप, नाउ वी नो दैट आर इज इक्वल टू, आपको एक सिंपल रिलेशन पता है, लास्ट एग्जांपल में देखा था। आर इज इक्वल टू क्या होता है, ए अपॉन 2 इंटू रूट 2। तो ए का वैल्यू आपको दिया हुआ है दैट इज 353.6। 2 इंटू रूट 2 का वैल्यू आपको लास्ट टाइम कैलकुलेट किया था दैट इज सेम एज 2 इंटू 1.414। इसका क्या मल्टीप्लाई करने के बाद 2.828 आता है। तो दोनों को हम लोग ने सिंपल लॉग से कैलकुलेशन कर लेंगे। कैलकुलेशन करने के बाद आपको लॉग मिलेगा 353 का लॉग और 2.828 का लॉग मिलेगा दैट इज इक्वल टू 2.5485 माइनस 0.4515। दोनों को माइनस करके आपको वैल्यू मिलेगा 125.025 पिकोमीटर। दैट इज सिंपल रेडियस। रेडियस है, यहाँ पे हम लोग ने रेडियस कैलकुलेशन कर लिया है, आपको रेडियस मिल गया है। रेडियस मिलने के बाद आपको क्या करना है आगे, नाउ वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल आपको कैलकुलेट करना है। सेकेंड स्टेप में आपको क्या कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। मीन्स वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू आपको कितना दिया है, ए का वैल्यू आपको दिया है 353 का आपने किस में कन्वर्ट किया था, सेंटीमीटर क्यूब में। सेंटीमीटर क्यूब ए इज इक्वल टू 3.536 इंटू 10⁻8 ब्रैकेट क्यूब करना है आपको। क्यूब करने के बाद इसका जो कैलकुलेशन करके आपको मिलेगा 10⁻20 एंड इसका वैल्यू मिलेगा दैट इज इक्वल टू 4.421 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो नेक्स्ट वन, नंबर ऑफ यूनिट सेल आपको कैलकुलेट करना है। तो नंबर ऑफ यूनिट सेल किस में कैलकुलेट करना है, 1.00 में। अगर ये टोटल नंबर्स में हम लोग को पास 1 इज इक्वल टू इतना मिलता है, तो 1.00 में कितना मिलेगा, दैट इज सिंपल 1/1.00 अपन 4.421 इंटू 10⁻23 किया तो आपको जो वैल्यू मिलेगा दैट इज इक्वल टू 2.26 इंटू 10⁻22। सिंपल एग्जाम्पल है, एक बार ठीक से आपको रिमेम्बराइज करना है। फर्स्ट आपको आर कैलकुलेट करना है। आर का वैल्यू आपको मिल रहा है 125 पिकोमीटर, सिंपल है। इसके बाद हम लोग को ए क्यूब कैलकुलेट करना है। ए क्यूब कैलकुलेट करके वो नंबर ऑफ यूनिट सेल आपको दिया हुआ है, इससे हम सिंपली डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद आपको जो वैल्यू मिलेगा दैट इज इक्वल टू 2.26 इंटू 10⁻22। ओके, नेक्स्ट सेकंड थर्ड एग्जांपल है। इन थर्ड एग्जांपल, इन एन ionic crystalline solid, atoms of element Y form SCP lattice. The atoms of element X occupy 1/3 of tetrahedral words. What is the formula of the compound? आपके ब्रैकेट में दिया है X2n Y3 दिया है, ये आपको कैसे फाइंड आउट करना है वो कैलकुलेट करके फाइंड आउट करना है। सिंपल दैट टाइप ऑफ एग्जांपल आपको सिंपली लॉजिकली अंडरस्टूड करके आपको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट अपन यू हैव टू राइट डाउन व्हाट इज द गिवन थिंग्स इज देयर। गिवन थिंग्स में आपको मिलेगा इन द गिवन SCP लैटिस Y atoms are present at 12 corners and 2 faces। SCP में कितना एटम्स होता है टोटल, 12 कॉर्नर्स और 2 फेसेस होता है। Therefore, number of
y एटम इज इक्वल टू, हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, 1/6 इंटू 12 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1/2, दैट इज इक्वल टू सिंपल वन, दिस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू आपको मिलेगा दैट इज इक्वल टू 3। ठीक है, y इज इक्वल टू 3 मिल रहा है, तो देयरफॉर देयर आर 6 tetrahedral voids, the number of x atoms कितना ऑक्यूपाई कर रहा है, 1/3। 1/3 में सिंपल आपको कितने मिले, यहाँ पे 3 मिल गया, तो 1/3 इंटू 6 इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 2। ठीक है, तो सिंपल देयर इज द सिंपल एग्जांपल, देयर देयर फॉर द फार्मूला ऑफ द कंपाउंड इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 3। ठीक है, सिंपल एग्जांपल है, आपको सिंपली रिमेमोराइज करना है, प्रैक्टिस करके देखना है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है example number 9 on your textbook, that is an element with molar mass 27 gram per mole forms cubic structure। क्या बना रहा है वो, फॉर्म क्यूबिक स्ट्रक्चर। क्यूबिक स्ट्रक्चर बनाने के बाद क्यूबिक यूनिट सेल विथ, उसका एज लेंथ आपको दिया हुआ है, दैट इज 405 पिकोमीटर्स। इफ डेंसिटी ऑफ द एलिमेंट इज इक्वल टू 2.7 ग्राम पर सेम क्यूब, देन व्हाट इज द नेचर ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल, उसका आपको नेचर कौन सा है वो फाइंड आउट करना है। नेचर के लिए हम लोग को फर्स्ट अपन एन फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर एन आपको मिल गया है तो आपको एन इज इक्वल टू क्या होता है, एस सी सी इज इक्वल टू 1, बी सी सी इज इक्वल टू 2 और एफ सी सी इज इक्वल टू 4 होता है। अगर एन का वैल्यू मिल गया तो इससे हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, ये दैट इज एफ सी सी, एस सी सी और बी सी सी हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो सेम नेक्स्ट फर्स्ट अपन यू हैव टू राइट डाउन व्हाट इज द गिवन थिंग्स। गिवन थिंग्स में आपको मिलेगा क्या क्या दिया है, मोलार मास, मोलार मास एम इज इक्वल टू कितना दिया है, दैट इज 27 ग्राम पर मोल। इसके बाद हम लोग को क्या दिया है, नेचर ऑफ क्रिस्टल, क्रिस्टल का नेचर आपको मिल रहा है क्यूबिक यूनिट से। और इसके बाद हम लोग को मिल रहा है एज लेंथ दिया है, एज लेंथ इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू कितना दिया है, 405 pm। इसका हम लोग सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लेंगे, दैट इज 4.05 × 10⁻8 सेंटीमीटर क्यूब। देन डेंसिटी आपको दिया हुआ है, दैट इज डेंसिटी रो इज इक्वल टू 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आपको कैलकुलेट क्या करना है, नेचर ऑफ यूनिट सेल। ओके, नेक्स्ट स्टेप, फार्मूला आपको सिंपल पता है, रो इज इक्वल टू एन इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए। ये सिंपल फार्मूला आपको यूज़ करना है। सपोज हम लोग को फर्स्ट एन आपको कैलकुलेट करना है, तो क्या हो जाएगा, एन इज इक्वल टू रो इंटू ए क्यूब इंटू एन ए अपॉन एम। सिंपल पुटिंग दिस ऑल वैल्यूज यू हैव टू हैविंग यू, और रो आपको दिया है, रो इज इक्वल टू 2.7 इंटू ए क्यूब कितना दिया आपको, 4.05 इंटू 10⁻8 का क्यूब करो। देन एन ए का वैल्यू हम लोग को पता है, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23 ओपन एम का वैल्यू आपके पास है 27। पूरा लॉग करके आपको जो वैल्यू मिलेगा, हेयर 23 दिस 27 2.7 लॉग 6.022 इंटू इसका जो पहले क्यूब कर लिया हम लोगों ने, ए का क्यूब निकाल लिया है, प्लस दिस एन ए का नंबर लिखा है और माइनस एम दैट इज 27। पूरा वैल्यू का हम लोग फिर से लॉग लिख लेंगे, लॉग इज इक्वल टू क्या आएगा, तो 2.7 का लॉग में आपको मिलेगा 0.4314 प्लस ए क्यूब का लॉग मिलेगा आपको 0.8224 प्लस 6 पॉइंट का आपको मिलेगा 0.7797 माइनस 27 का आपको मिलेगा 1.4314। ठीक है, इसे हम लोग सिंपल फर्स्ट अपन पूरा जितना पॉजिटिव पॉजिटिव है वो प्लस प्लस आपको प्लस कर लेना है, प्लस करने के बाद जो वैल्यू आएगा दिस माइनस लास्ट का वैल्यू आपको माइनस करना है। माइनस करने के बाद आपको जो वैल्यू मिलता है दैट इज इक्वल टू 0.062
इसका एंटी लैग आपको निकलना है। एंटी लैग निकलने के बाद आपको जो वैल्यू मिलेगा दैट इज इक्वल टू 4.0036, दैट इज द 4 मीन्स आपको सिंपली इंडिकेशन क्या मिलता है, 4 किसका होता है, एन इज इक्वल टू FCC का। सिंपल व्हाट इज द नेचर ऑफ कंपाउंड इज इक्वल टू यूनिट सेल इज इक्वल टू FCC, नेचर ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू FCC। ओके, नेक्स्ट वन, एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10 में आपको क्या दिया है वो आपको फर्स्ट अपन यू हैव टू रीड। एन एलिमेंट हैज अ BCC स्ट्रक्चर। एन इज इक्वल टू क्या दिया है, BCC टाइप ऑफ यूनिट सेल आपको मिल गया है, BCC स्ट्रक्चर विथ यूनिट सेल, और इसका एज लेंथ आपको दिया है 228 पिकोमीटर, 288 पिकोमीटर। how many unit cells and number of atoms are present in 200 gram of elements। आपको आंसर, एक्सपेक्टेड आंसर दिया है दैट इज 1.16 इंटू 24 और 2.32 इंटू 10⁻²⁴। आपको मिलता है कि नहीं, आपको कैलकुलेशन करके देखते हैं। गिवन थिंग्स फिर से आपके पास क्या है, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल आपको BCC दिया है, एज लेंथ आपको 288 पिकोमीटर दिया है, उसे कन्वर्ट करके हम लोग सेंटीमीटर क्यूब में 2.88 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर क्यूब बना लेंगे। नंबर ऑफ यूनिट सेल आपको कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ एटम्स ऑल्सो कैलकुलेट करना है, मास ऑफ एलिमेंट आपको दिया हुआ है दैट इज 200 ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप दैट इज नाउ द फार्मूला आपको पता है सिंपल, दैट इज रो इज इक्वल टू एन इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए। यही फार्मूला आपको फिर से यूज़ करना है, मल्टीप्लाइड बाय मास ऑन बोथ साइड। आपको ये यहाँ पे क्या क्या दिया है आपको, फर्स्ट ये स्टेप में आपको क्या करना है, ये मास है ना, ये मास दोनों साइड पर आपको मल्टीप्लाई करके लेना है, अगर ये रो आपको रिमूव करना है तो इसे मल्टीप्लाई करने के बाद आपको फार्मूला मिल जाएगा, स्मॉल m इंटू रो इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू एन इंटू कैपिटल M अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए। ठीक है, तो यहाँ पे m इंटू रो इज इक्वल टू, इसे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, m ओपन ए क्यूब इंटू n इंटू एम ओपन एन ए। यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट है दैट इज m ओपन ए क्यूब, ये क्या होता है, दैट इज इक्वल टू रो। सिंपली हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, m इंटू रो इज इक्वल टू रो इंटू एम ओपन एन ए, और यहाँ पे सिंपल रो गेट कैंसिल, डेंसिटी कैंसिल हो गया, आपके पास खाली क्या है, m आपको कैलकुलेट करना है। तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर, सिंपल n इंटू एम ओपन एन ए, आपके पास मास दिया हुआ है दैट इज 200 ग्राम, n का वैल्यू आपके पास है 2, BCC में 2 होता है, m आपको कैलकुलेट करना है, कैपिटल M आपको कैलकुलेट करना है, ओपन एन का वैल्यू हम लोग को पता है 6.022 इंटू 10⁻23। सिंपल कंटिन्यूज, नेक्स्ट m इज इक्वल टू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज m आपको आगे लेना है, आगे लेने के बाद आपको क्या मिलेगा, दिस 200 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 ओपन 2 हो जाएगा। ठीक है, इसका सिंपल लॉग देखते हैं, 200 लॉग ऑफ 200 प्लस लॉग ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 माइनस लॉग 2, इसका प्लस माइनस करके आपको जो वैल्यू मिलेगा दैट इज इक्वल टू 2.7797। इसका एंटी लॉग देखा तो एंटी लॉग आपको मिलेगा 6.022 ग्राम, दैट इज m। नाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स, m कैलकुलेट कर लिया है तो आपको नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करना है। नंबर ऑफ एटम के लिए हम लोग के पास क्या होता है, हम लोग को ये पता है कि 1 मोल का एक कॉन्सेप्ट आपको यूज़ करना है। यहाँ पे 1 मोल इज इक्वल टू कितना होता है, मास अपन मोलर मास। तो मास कितना दिया हुआ हम लोग के पास 200, मोलर मास हम लोगों ने कितना कैलकुलेट किया है 6.02.143। तो वी नो 1 मोल इज इक्वल टू, हम लोग को पता है 1 मोल का वैल्यू कितना होता है, दैट इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। सिंपल ये जो वैल्यू यहाँ पे पुट अप करेंगे 200 अपॉन 602.143 इंटू
022 इंटू 10⁻23 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आप सिंपल लॉग से सब करना है, इसलिए लॉग से मैंने कैलकुलेशन करके देखा है। लॉग ऑफ 200 6.022 का लॉग देखा है और यहाँ पे 6.02143 का लॉग देखा। तीनों का पूरा लॉग करके आपको जो वैल्यू मिल रहा है दैट इज इक्वल टू 1.9986। ये नियर अबाउट क्या होगा, डायरेक्टली 2 आएगा। तो 2 इंटू 23 दैट इज द आंसर। वी नो दैट इन BCC यूनिट सेल नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू कितना होता है, 2। तो हम लोग के पास क्या होगा, आपका वैल्यू कितना मिला, 2 इन दिस नंबर ऑफ 2 इंटू 23। तो यहाँ पे सिंपल ओपन 2 कर दिया, आपको जो वैल्यू मिलेगा दैट इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻23। ये 2 गेट कैंसल, 1 इंटू 10⁻23। ओके, नेक्स्ट वन। इन MCQ में आपको एक सिंपल एग्जांपल दिया है दैट इज MCQ नंबर 7। अ कंपाउंड फॉर्म्स SCP स्ट्रक्चर, number of octahedral and tetrahedral words in 0.5 moles of substances is respectively। आपको कितना मिलेगा ये कैलकुलेट करना है। तो सिंपल है कैलकुलेशन, एक सिंपल कैलकुलेशन है। यहाँ पे फिर से हम लोग को 1 मोल का कंसेप्ट को यूज़ करना है। फर्स्ट अपन यू हैव टू राइट डाउन व्हाट इज द गिवन थिंग्स। गिवन में आपको मिल रहा है द कंपाउंड फॉर्म्स SCP स्ट्रक्चर। SCP स्ट्रक्चर आपको मिल गया है। मीन सिंपल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स में हम लोग को एक सिंपल रिलेशन पता है, n इज इक्वल टू क्या होता है, n नंबर ऑफ वर्ड्स जो वर्ड स्पेस होता है वो सेम होता है। टेट्राहेड्रल में नंबर ऑफ वर्ड्स ऑक्टाहेड्रल से दुप्पट यानी कि डबल होता है। ठीक है, सिंपल n इज इक्वल टू ट्वाइस n। तो वी सिंपली वी नो दैट हियर 0.5 मोल्स में आपको कितना है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे आपको 1 मोल का कॉन्सेप्ट फिर से यूज़ करना है। 1 मोल इज इक्वल टू हम लोग को पता है 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। ठीक है, अगर ये 1 मोल में इतना होता है तो 0.5 में कितना होगा, तो 0.5 में हम लोग सिंपली मल्टीप्लिकेशन करें। 0.5 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 का मल्टीप्लिकेशन करो। मल्टीप्लिकेशन करके आपको n मिल जाएगा। n इज इक्वल टू दिस 3.011 इंटू 10⁻23। अब ये n इज इक्वल टू n है, ये ऑक्टाहेड्रल की बात हो गई। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल में सेम n इज इक्वल टू n होता है। तो टेट्राहेड्रल में क्या होता है, एन ट्वाइस एन करना है। ट्वाइस एन करने के लिए हम लोग को क्या पड़ेगा, एन को सिंपली मल्टीप्लाई करो। 2 इंटू 3.011 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई करें, आपको जो वैल्यू मिलता है दैट इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। तो उसका आंसर दोनों वैल्यू आपको मिल गया है, दैट इज ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट वन, लास्ट एग्जांपल दैट इज सेम नंबर दिया है 7 मीन्स टेक्स्ट बुक में 7 नंबर दिया है बट दैट इज प्रिंटिंग मिस्टेक, दैट इज 8 नंबर। तो PB हैज FCC स्ट्रक्चर विथ एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल 495 पिकोमीटर। आपको रेडियस, इसका रेडियस क्या होगा वो आपको कैलकुलेट करना है। रेडियस कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग, फिर से R इज इक्वल टू फर्स्ट अपन व्हाट इज द गिवन थिंग्स यू हैव टू राइट डाउन। गिवन थिंग्स में आपको मिल रहा है दैट इज PB इज इक्वल टू FCC। PB इज इक्वल टू FCC। तो PB इज इक्वल टू FCC का स्ट्रक्चर मिल गया। इसके बाद हम लोग को क्या करेंगे, एज ए का वैल्यू आपको मिल रहा है दैट इज 495। आर आपको कैलकुलेट करना है। तो आर का रिलेशन हम लोग को पता है दैट इज आर इज इक्वल टू a/2 इंटू √2। तो सिंपल ए कितना दिया है 495 अपन 2 इंटू √2। √2 का जो वैल्यू हम लोग को पता है 2 इंटू 1.414। a/1 ए का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है दैट इज 495 अपॉन 2.828। इसका लॉग देखा, लॉग देखने के बाद आपको जो कैलकुलेशन मिलेगा दैट इज सिंपली 175। मीन सिंपल इसका जो आंसर आएगा डी इज द करेक्ट आंसर। तो सिंपल हियर इन दिस चैप्टर ऑल न्यूमेरिकल्स आर सॉल्विंग हियर। एनी डिफिकल्टीज आर taken then simply you have to contact with me. Okay, thank you. Thank you. The chapter is end. Here all problems I will solve. So any difficulties, again once again I will request you have to contact with me on WhatsApp group. My number is there. Okay, thank you.